Bismillah Rahman Rahim. Dear participants, this is Muhammad Bilal Ashraf from Office of Corporate Linkages and Placements at GMT Quaid-e-Azam Campus Lahore. Today, higher management of UMT Quaid-e-Azam Campus Lahore and Office of Corporate Linkages and Placements at GMT Quaid-e-Azam Campus Lahore has requested Mr. Sarmad Hussain, who is the regional head of Pakistan Stock Exchange Limited Lahore office, to conduct a session with you on the topic of working of stock exchange. Mr. Sharmad Hussain is accompanied by Mrs. Kasif, who is also from Pakistan Stock Exchange Limited. So there are some guidelines which I want to tell you before starting the session. That during the sessions, you have to listen to the lecture or the whatever sir tell you about the working of Lahore Stock Exchange or Pakistan Stocks Exchange or capital markets. And if you want to ask any questions, then you will type it in the end of the session in your chat box as a chat message, and sir will reply to the relevant question. So please be attentive to this session as you are in the last semester or second last semester as the final year students. So this session will be very much valuable for you if you want to work in Pakistan Stock Exchange Limited Lahore office, or you want to learn what is the how the stock exchange market work. So dear sir, we warmly welcome you at GMT Quaid-e-Azam Campus Lahore. Thank you. And now I would like to request you to please interact with the participants. Thank you, sir. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. And I really appreciate and thanks UMT to provide Pakistan Stock Exchange another opportunity to interact with our youth and our coming generation who will take charge from us in their upcoming practical life. 2 days I will do my best that I will talk about the mechanism of stock market and how it will help you to secure your future self, and what kind of investment mechanism, if you adopt in your from starting from today and onward, and how you will make sure your future self secure. First of all, I would like to introduce myself. As your Career Services Office said, my name is Sarmad Hussain and I'm Regional Head PSX Lahore. I am attached with this capital market from last almost more than 20 years, worked in various key positions in information technology, business operations, regulatory divisions, and operational matter of previous stock exchange, say Lahore Stock Exchange. And after integration, PSX hired me as a head of operation and regional head PSX. And I'm currently looking after all related matters in Punjab. Let me share my presentation first, and then we will talk. Learn to earn with PSX is the motive and discussion point. We will discuss importance of saving and financial planning, history of stock exchanges in Pakistan, stock market ecosystem, key function of Central Depository and National Clearing Company of Pakistan. Excuse me, sir. Sorry for interrupting you.
Sir, please speak a bit louder because there is a huge gathering. So please speak a little bit louder so that participants who are sitting in the back seats, they can listen to you easily. Okay, okay, okay. Okay, thank you, sir. Today, our discussion point will be importance of saving and financial planning, history of stock exchanges in Pakistan, stock market ecosystem. We will discuss key function of Central Depository and National Clearing Company of Pakistan, historical performance of KSE 100 index, why companies come and list at PSX, why they raise their capital fundraising through PSX, how to select a security broker, PSX website and research portal. इसके ऊपर भी हम बात करेंगे. Do's and don'ts and why most people lose their money in stock market. ये भी we will discuss few reasons that mostly people lose their investment in capital market. The main and important slide for for student के point of view से कि आपके if you visualize your long term, short term and medium term goals which you visualize now, आज के दिन में अगर आप visualize करते हो अपने future self को कि आपके सारे ये जो goals हैं, business start करना है, आपने health maintain रखनी है, quality education करनी है, make and buy घर बनाना है या उसको परचेज करना है, मैरिज है, अपग्रेड योर लाइफ है, लाइफस्टाइल है, अच्छी राइड आपने बाय करनी है. तो जितने भी अगर हम अगले 10 ईयर 20 ईयर गोल्स अगर हम राइट डाउन करें, अपनी कॉपीज पे आप राइट करो और विजुलाइज उसको करो कि ये मेरे गोल्स हैं जो कि मैंने आज से 5 साल बाद इस लेवल पे जाना है, उसके बाद आफ्टर 2030 में इस लेवल पे, 2035 में ये मेरा गोल है एंड 2040 में मैंने इस लेवल तक अपनी लाइफ और अपने बिजनेस और अपनी जो स्टेटस है उसको लेके जाना है. तो ये जो सारी चीजें हैं, ऑल दीज थिंग्स, उसके लिए आपको कैपिटल रिक्वायर्ड है. और कैपिटल कहाँ से आता है? कैपिटल अभी आप ये एक बड़े वेल नोन और हाईली जो टेक्निकल और एक HSC की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो, आपके पेरेंट्स जो ये ड्यूज दे रहे हैं, जो फीसेस यहाँ पे पे कर रहे हैं, उन्होंने कब से अपनी इसकी सेविंग को अडॉप्ट किया होगा, उसको करके फिर किसी जगह इन्वेस्ट किया होगा, फिर आपकी FSC, फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन, वहां तक, फिर आगे सारा टिल हायर एजुकेशन. तो वो पूरी प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ हो रहा है. आपने भी इफ यू प्रॉमिस योर फ्यूचर सेल्फ, आज प्रॉमिस करेंगे या आपके आज ये हाथ में है कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ को किस तरह का स्टैंडर्ड देना चाहते हैं. बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए कैपिटल रिक्वायर्ड है. इनिशियल हेल्प तो आपकी पेरेंट्स कर देंगे, फैमिली भी कर देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको आज से प्लानिंग करनी पड़ेगी. और उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं वो along other asset classes, stock market, stock exchange is one of the important asset class इक्विटी में, कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करें तो अगले जो लॉन्ग टर्म है, हम आगे इसमें डिस्कस भी करेंगे कि 10 ईयर हिस्टोरिकल जो रेट ऑफ रिटर्न है एनुअलाइज वो क्या है, और बाकी जो एसेट क्लासेस हैं उनका रेट ऑफ रिटर्न क्या है. तो ये आज से आप, और उसके लिए जो है आपकी जो हैबिट है सेविंग की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जितनी इनकम है आपकी होगी उसमें से जो एक इंटरनेशनल आप उसको कह लें कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कि एटलीस्ट 20% आप उसको सेव करें. और जो आपके जो एक्सपेंडिचर हैं उसको भी आपने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है. 50% आपके एक्सपेंडिचर वो होंगे जो अनअवॉइडेबल हैं, लाइक यूटिलिटी बिल्स, हाउस रेंट, एजुकेशनल ड्यूज. और फिर 30% वो आपके एक्सपेंडिचर होंगे जो आप मतलब ओकेजनली करते हैं, परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, वो आपके उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं. और ये जो what is left after saving, and Thomas Jefferson said never spend your money before you have it, like credit card. if future money present में कभी भी खर्च ना करें. So saving habit would be very important for your future.
अब PSX का जो हम रीजनल मार्केट के साथ कंपैरिजन करते हैं, उसमें आप देखें कि वी हैव वेरी लेस नंबर ऑफ इन्वेस्टर एज कंपेयर टू रीजनल कंट्रीज. वी हैव ओनली 0.1% of investor of total population. It means we have 231,735 investors in 220 million population. इंडिया देखें 32 मिलियन इन्वेस्टर बेस है, और इसी तरह अगर हम डेवलप कंट्रीज को देखें, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स को, तो वो उसके 47 और 53% तक, ऑलमोस्ट 50% ऑफ देयर पॉपुलेशन आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, और वो अपनी सेविंग को यूटिलाइज करते हैं, और वो फिर उसका जो 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 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है या जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसके अपने कैपिटल की एप्रिसिएशन को वो एंजॉय करते हैं. So one of the key reason that today PSX is conducting this awareness session on financial literacy, जो राइड है PSX की, उसके कॉन्टेस्ट में हम ये सेशन कर रहे हैं, उसकी एक बड़ी कोर रीजन है कि वी हैव पाकिस्तान में इन्वेस्टर बेस बहुत कम है, और वो इस वजह से कम है कि राइट नॉलेज और फंडामेंटल नॉलेज जो कैपिटल मार्केट का है, इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म नहीं पता, प्राइमरी मार्केट में कैसे करना है, सेकेंडरी मार्केट में कैसे करना है, तो वो हम आज ये चीजें डिस्कस करेंगे. फाइनेंशियल स्टैट्स अगर हम पाकिस्तान के देखें तो 220 मिलियन पॉपुलेशन में जो बैंक अकाउंट्स हैं वो 50 मिलियन है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर 300,000 के करीब हैं, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर इक्विटी के 230,000 के करीब हैं, नेशनल NSS इन्वेस्टर मीन नेशनल सेविंग स्कीम्स, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर वो की हुई है. मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक जैज कैश और टेलीनॉर वगैरह, उसमें 4% जो पॉपुलेशन है वो पार्टिसिपेट करती है. अब ये जो स्टैट्स शो करते हैं, इट मीन देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी विच इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विच वी आर मिसिंग. और अगर वो आपको पता चल जाए कि आज आप इन्वेस्टमेंट करें और 1 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 10 ईयर के बाद आपको रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलने वाला है, तो डेफिनेटली यू विल गो एंड चूज टू इन्वेस्ट ऑन अ इक्विटी मार्केट. अदर एवेन्यूज भी हैं, उनके रेट ऑफ रिटर्न डिफरेंट हैं, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म भी डिफरेंट है, रिस्क भी डिफरेंट है, और अमाउंट जितनी इन्वेस्टमेंट है वो भी वेरी करती है. इन्वेस्टर ब्रेकडाउन अगर हम करें पाकिस्तान में, तो इस वक्त जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं 217,000 के करीब हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज 226 हैं, कॉर्पोरेट इंडिविजुअल ब्रोकर जो इन्वेस्टर्स हैं वो 1673 है, फंड एंड अदर 1400. तो ये टोटल ब्रेकअप है जो कि 231,735 इन्वेस्टर्स का, जो ब्रोकर्स जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ब्रेकअप है कि इसमें इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट और बैंक्स और ब्रोकर्स जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितने हैं. अब अगर हम इमर्जिंग मार्केट के साथ प्राइस अर्निंग रेशियो देखें, तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है, लोएस्ट साइड पे. प्राइस अर्निंग आप देखें कि जिसकी लोअर होगी, इट मीन कि वो मल्टीपल पे, अभी उसमें जो उसका प्रीमियम है या उसकी जो जो एप्रिसिएशन हो सकती है शेयर्स की, सिक्योरिटीज में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, वो अभी क्वेश्चन है. अगर आज लोएस्ट वैल्यू पे चल रहा है, उसको हम बाय करेंगे, तो अपना जो फ्यूचर प्रॉफिट है उसको मेक श्योर कर सकते हैं. टॉप ऑफ द लाइन इंडिया चल रहा है, जिसमें 28.76 जो उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो चल रही है. इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे स्टॉक मार्केट में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो डिविडेंड यील्ड है, कि वो कंपनी जो पे आउट्स करती हैं इन्वेस्टर्स को इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, वो पाकिस्तान में 4.77 उसकी जो है उसकी परसेंटेज है. और इसी तरह सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, और फिर चाइना, फिलिपाइन, तुर्की और इंडिया, ये उसकी मतलब रेशो है जो कि डिविडेंड यील्ड की, ये पाकिस्तान बता रहा है, और ये 31 अगस्त 2020 के स्टैट्स हैं. इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं कौन कौन से? ये कैश बेस है, इक्विटी बेस है, फिक्स्ड इनकम है, रियल स्टेट है, कमोडिटीज हैं, जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो. इसमें इक्विटी में स्टॉक मार्केट आ जाता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इंडेक्स, फ्यूचर मार्केट आ जाती है. कैश में लिक्विड फंड आता है, करंट सेविंग अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स आ जाते हैं. फिक्स्ड इनकम में मनी मार्केट में आ जाता है, टर्म डिपॉजिट्स आ जाते हैं, नेशनल सेविंग स्कीम आ जाती है. रियल स्टेट की जब हम अगर बात करें, तो वो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आ जाती है. इसमें प्लॉट अगर आप
लेके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिल्डिंग या कोई घर बना के उसको रेंट पे दे के, वो भी एक सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको पे बैक कर रही होती है, लेकिन इट रिक्वायर्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और अगर आप कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना चाहें तो उसमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है जो इसको डील करती है। और ये सारे इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस हैं, इसमें से स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ देम। अब अगर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स हैं, जो वन ऑफ द इंडेक्स अलोंग विद अदर 8 इंडेक्सेस, KSE 100 इंडेक्स में हम 100 कंपनीज हैं जो कि एक परफॉर्मिंग मैकेनिज्म पे वो काम कर रही होती हैं, और उसकी अगर हम लास्ट 10 ईयर की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो ये आपके सामने आ रहा है कि 17.7% रेट ऑफ रिटर्न है एनुअलाइज। एक चीज आपको जेहन में रखनी चाहिए, आपके नॉलेज में भी डेफिनेटली होगी, कि सेविंग का बिगेस्ट एनिमी इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन इस वक्त अराउंड 10% चल रही है, और ये जो लास्ट 10 ईयर 2010 टू 2019 है, इन्फ्लेशन 9.1% एवरेज थी। जहां भी इन्वेस्ट करें एटलीस्ट इन्फ्लेशन को तो वो मीट करे, ताकि वो आपकी जो वैल्यू ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है, जो जो उसकी अमाउंट है उसकी वो बरकरार रहे। तो 17.7% KC 100 के सिलेक्टेड स्टॉक का लास्ट 10 ईयर का हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिटर्न है। एज कंपेयर टू गोल्ड को अगर हम देखें, येलो मेटल 7.4% आ रहा है। अभी इस वक्त डिफरेंट है, जाहिर है रेट्स गोल्ड के काफी ज्यादा अप्रिशिएट हुए हुए हैं। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट उसका 10.6% है। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स PIBs का 10.5% है। ट्रेजरी बिल्स, ये डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं जिनके के रेट ऑफ रिटर्न आपका एनुअलाइज 9% है। और डिपॉजिट्स के ऊपर अगर बैंक डिपॉजिट्स आपने किए थे तो लास्ट जो 10 ईयर का जो एवरेज है वो 9% तक रेट ऑफ रिटर्न है। तो इसमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लॉन्गर इन्वेस्टमेंट के लिए, ये इन सम केसेस ये 20% से भी ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न स्टॉक मार्केट आपको दे रही होती है, बट इट कम्स विद केयरफुल इन्वेस्टमेंट आफ्टर द कंसल्टिंग ऑफ सिक्योरिटी ब्रोकर्स। फिर ये हमारी इस स्लाइड्स में आप हमारी प्रोडक्ट लाइन देख रहे हैं कि किस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो PSX ऑफर कर रहा है। उसमें रेगुलर मार्केट है, फिर उसमें आगे दो तरह के मार्केट है, ऑल डॉट और स्क्वेयर अप मार्केट है, फ्यूचर मार्केट है, कैश सेटल्ड और कैश इंडेक्स फ्यूचर है, फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, TFCs हैं, डिलीवरेबल फ्यूचर्स हैं। ये सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। रीट है, ये गवर्नमेंट मॉल कराची का हमारे पास एक लिस्ट हुआ है। इसमें इक्विटी इंडेक्सेस हैं, फिर इस्लामिक इंडेक्सेस हैं। वो कंपनी जो कि प्योरली शरिया कंप्लाइंट है, उसका KMI 30 एक इंडेक्स है जिसमें 30 कंपनीज हैं। फिर सेक्टरल इंडेक्सेस हैं ऑयल एंड गैस का। फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, ये रिसेंटली हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने ETF लॉन्च किया, उसके वो आ जाता है। और जो फ्यूचर हमारी प्लान प्रोजेक्ट हैं उसमें फिक्स्ड इनकम बैट्स के ऊपर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, PIBs हम ला रहे हैं, सुकूक ला रहे हैं इस्लामिक, ये फ्यूचर में पाइपलाइन में प्रोडक्ट्स हैं। और हर एक का इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म डिफरेंट है, और वो आप उसमें आफ्टर गेटिंग अंडरस्टैंडिंग इस पे इन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करें कि मार्केट दो तरह की है, एक प्राइमरी मार्केट है, दूसरी सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट पहले बात कर लेते हैं कि वो जब नया कंपनी कोई इश्यूअर नया आता है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है और वो फंड रेज करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है, तो वो प्राइमरी मार्केट कहलाती है। वो बुक बिल्डिंग का प्रोसेस होता है 2 दिन का, और फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO उसमें आता है, जिसमें बैंक के थ्रू वो बैलेटिंग के जरिए 500,000 और 2,000 शेयर्स की वो बैलेटिंग से निकलता है जनरल पब्लिक का, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। बुक बिल्डिंग के प्रोसेस में एज अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 1 मिलियन और अब उसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है PKR रुपीज से। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में आप उसकी नॉर्मल बाइंग सेलिंग कर सकते हो, थ्रू ब्रोकर कर सकते हो, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस का भी फंक्शन नहीं है PSX में। और ऑब्जेक्टिव जो प्राइमरी मार्केट का है वो कैपिटल रेज करना है फॉर जो कंपनी लिस्ट हुई है होती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, ताकि अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकें, मर्जर एक्विजिशन या उसमें एक्सपेंशन कर सकें। और जो सेकेंडरी मार्केट का जो ऑब्जेक्टिव है, जहां इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, वो कैपिटल एप्रिसिएशन है, कि वो इन्वेस्टमेंट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को आगे फिर उसका एक रीजनेबल गेन करें और उसको फिर लॉन्ग टर्म पे या शॉर्ट टर्म पे उसको इन्वेस्ट किया जाए। हिस्ट्री, ये
ऑब्वियसली ये पहले 3 स्टॉक एक्सचेंजेस थी, जनवरी 16 में तीनों इंटीग्रेट हुई, फिर दिसंबर में 40% स्टेक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का चाइनीज कंसोर्शियम ने एक्वायर किया, फिर जून 2017 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ भी लिस्ट हो गई। नाउ वी आर अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, और जो पहले ऑल जो उसके ऑनर्स थे वो सिक्योरिटी ब्रोकर्स थे। इस वक्त 60% जो ऑनरशिप है वो नॉन ब्रोकर्स हैं और 40% इनिशियल शेयर होल्डर हैं। इसी तरह उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिप्रेजेंटेशन है बोर्ड में, वो भी अकॉर्डिंगली उस परसेंटेज के हिसाब से है। इस वक्त हमारे पास अगर हम बात करें 530 के करीब लिस्टेड कंपनीज हैं, 35 सेक्टर्स में ये डिवाइड की हुई हैं। 217 शरिया कंप्लाइंट लिस्टेड कंपनीज हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 7.65 ट्रिलियन रुपीस है। 231,000 इन्वेस्टर, एज आई प्रीवियसली सेड। 219 एक्टिव ब्रोकर हैं, सिक्योरिटी ब्रोकर उनको कहते हैं, अक्रॉस पाकिस्तान वो पूरे बैठे हुए हैं। 140 ब्रांचेज हैं अक्रॉस पंजाब। लाहौर में हमारे इधर जो एक्टिव ब्रोकर हैं अराउंड 55 के करीब हैं, और 9 इंडेक्सेस हैं, जिसमें वन ऑफ द फेमस इंडेक्सेस KSE 100, और जो शरिया कंप्लाइंट अगर हम बात करें तो कराची मिजान इंडेक्स KMI 30। शेयर होल्डिंग पैटर्न, चाइना फ्यूचर स्टॉक एक्सचेंज है, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है, शेंजन स्टॉक एक्सचेंज है, पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कंपनी है, हबीब बैंक लिमिटेड है, इनके पास 40% स्टेक है। जनरल पब्लिक और इनिशियल जनरल पब्लिक के पास 20% है, जिसमें और जो इनिशियल शेयर होल्डर है उनके पास 40% है। ये ओवरऑल ब्रेकअप दिया हुआ है इधर कि 40% इनिशियल शेयर होल्डर है और बाकी कंसोर्शियम और 20% जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के पास जो PSX का शेयर होल्डिंग है पैटर्न, उसमें भी 50% लोकल है इन्वेस्टर और 50% फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। ये हमारी एसोसिएट्स में हमारी PSX की इन्वेस्टमेंट है, जिसमें सेंट्रल डिपॉजिटरी है उसमें 39.8%, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान 47% है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है VAIS उसमें 12.5% है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज जो कमोडिटी को डील करती है, कमोडिटीज को, क्रूड ऑयल और गोल्ड और मेटल्स वगैरह को, उसमें 28.4% PSX की शेयर होल्डिंग है। ये ओवरऑल इकोसिस्टम पूरा स्टॉक मार्केट का एज टॉप ऑफ द लाइन एपेक्स रेगुलेटर है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसके इसकी सुपरविजन में और अंडर द लाइसेंस ऑफ SSCP, नेशनल क्लियरिंग कंपनी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, CDC, ये सारे जो एंटिटीज हैं ये वर्क कर रही हैं और आपस में ये सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत कनेक्टेड है। नेशनल क्लियरिंग कंपनी का आगे रोल इनका क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का है। सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, इनका बेसिक रोल है ये डिजिटल फॉर्म में जो सिक्योरिटीज हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको ये स्टोर अपने पास करते हैं। ये सिक्योरिटी डिपॉजिटरी कंपनी है। इन्वेस्टर अकाउंट और सब अकाउंट, दो तरह के अकाउंट ही ऑफर कर रही है जनरल पब्लिक को। उसके बाद 219 एक्टिव ब्रोकर्स हैं और 21 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं और 231 इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास। ये पूरा इकोसिस्टम है जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है अंडर द लाइसेंस ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो हमारे सिक्योरिटी ब्रोकर्स हैं उनको रेगुलेट करती है, उनकी सारी मॉनिटरिंग और कंप्लायंस लेवल को देख रही है, और लाइसेंस इसको इशू करता है तमाम ब्रोकर्स को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह जो है लिस्टेड कंपनीज हैं जितनी 530 आपको मैंने पहले बताया, उसको जो रेगुलेट कर रहा है वो SSCP डायरेक्ट उनकी मॉनिटरिंग और उसको रेगुलेट वो कर रहा है। Central Depository, as I earlier said, is the only custodian services of depository in Pakistan. दो तरह के अकाउंट है, इन्वेस्टर अकाउंट है जो कि आप अगर इन्वेस्टर अकाउंट आप ओपन करें 500 या 600 रुपीज पर एनम इसके चार्जेस हैं, और आप प्राइमरी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब भी कोई नई कंपनी लिस्टिंग के लिए आती है उसमें आप 2 दिन के बिडिंग प्रोसेस में, बुक बिल्डिंग में या IPO में इस इन्वेस्टर अकाउंट को मेंशन करेंगे। अगर आपके शेयर्स निकल आ जाते हैं, बिडिंग में मिल जाते हैं आपको या बैलेटिंग में, तो आपके इन्वेस्टर अकाउंट में डायरेक्ट वो पार्क हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप सेकेंडरी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो तो फिर ये जो सब अकाउंट है CDC का, सेंट्रल डिपॉजिटरी, ये ब्रोकर के पार्टिसिपेंट ID के अंडर खुलता है। ब्रोकर के पास जाना पड़ता है, तो वो जो सेकेंडरी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग है, आप वो सब अकाउंट पे आपको फिर वो सिक्योरिटीज मूव करनी पड़ती हैं। अगर आपने बेचनी भी है प्राइमरी मार्केट में जो
सिक्योरिटीज बाय किए थे, शेयर्स परचेज किए थे, अगर वो आपने बेचने हैं तो उसको आपको मूव करना पड़ेगा सब अकाउंट में सीडीसी के। इसी तरह अगर नेशनल क्लियरिंग कंपनी देखें तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट है। PSX is only provide the venue for buyer and seller and a company to raise capital for their business growth. तो जब वंस बायर और सेलर का ऑर्डर कंफर्म हो गया, PSX ने वो इंफॉर्मेशन दे दी नेशनल क्लियरिंग कंपनी को। नेशनल क्लियरिंग कंपनी ने उसको देखना है कि किसकी मनी ऑब्लिगेशन है और किसकी सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन है। तो अकॉर्डिंगली वो बैंक्स को और सीडीसी के अकाउंट्स को वो इंस्ट्रक्शन भेजता है। यहाँ पे एक टेक्निकल टर्म हम बोलते हैं कि क्लियरिंग एंड सेटलमेंट होती है T+2 पे, मतलब दूसरे दिन जाके, आज ऑर्डर कंफर्म हुआ, दूसरे दिन जाके वो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट जाएगा। T+0 भी है, वो सेम डे क्लियरिंग हो जाती है और सेटलमेंट हो जाती है, और जिसने शेयर्स परचेज किए हैं उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं और सीडीसी के अकाउंट में सिक्योरिटीज पार्क हो जाती है। अब हम अगर PSX के दो तरह के बोर्ड हैं, एक बोर्ड है जिसपे मेन बोर्ड है जिसमें 530 कंपनी लिस्टेड है, और इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है कंपनीज के लिए कि 2 साल के ऑडिटेड अकाउंट हों और 200 मिलियन पेड अप कैपिटल हो, मतलब 20 करोड़ की कंपनी का इनिशियल अगर वो स्पॉन्सर्स और प्रोमोटर्स का उसमें कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है तो वो मेन बोर्ड पे आ सकती है आफ्टर मीटिंग द ऑल रेगुलेटरी एंड अदर रिक्वायरमेंट। और जेम बोर्ड है, जेम स्टैंड फॉर ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट बोर्ड। ये एक नया बोर्ड है जो PSX ने लॉन्च किया है रिसेंटली, और इसमें हम उन लोगों को, उन कंपनीज को, स्टार्टअप्स को, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को और कंपनीज को, SMEs को, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को अकोमोडेट कर रहे हैं जिनका पेड अप कैपिटल 2.5 करोड़ से 20 करोड़ के दरमियान में। तो इसकी लेस रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है और ये ग्रोथ ओरिएंटेड बोर्ड है कि जिस कंपनी की प्रोजेक्शन हमें लग रही है कि वो बेटर परफॉर्म करेगी और वो ऐसे PSX की लिस्टिंग कमेटी और उसको फिर हम अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो आके इधर अपना फंड रेज कर सके। और लेकिन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपनी ड्यू डिलिजेंस पूरी करते हैं, और जो मिनिमम भी रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट हैं, डिस्क्लोजर्स हैं, वो पूरी हम उसको अकॉर्डिंगली फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के और के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी वो कलेक्ट करते हैं। अब हम बात करें कि कंपनीज लिस्ट क्यों होती हैं। एक तो फंड रेज करना, उन्होंने लो कॉस्ट लॉन्ग टर्म उनको कैपिटल मिल जाता है, फिर इंडेक्स में इंक्लूजन हो जाती है, इनएक्सपेंसिव फाइनेंसिंग उनको मिल जाती है। अगर वो कमर्शियल बैंक्स के पास जाएं तो बड़े शॉर्टर पीरियड और टाइम के लिए उनको लोन मिलता है, और अगेंस्ट प्लेजिंग ऑफ कोई कोलेक्ट्रल, कोई प्लेज करवाना पड़ता है, या टर्म्स एंड कंडीशन इंटरेस्ट बेस इतनी हाई साइड पे होती हैं कि वो फिजिबल नहीं होता। फिर ये कि टैक्स बेनिफिट है 20% पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल तक जो उनकी जो इनकम है उसमें से वो उसको 20% FBR टैक्स रिबेट देता है। कंपनी प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल इनहांस हो जाता है, पब्लिक का ट्रस्ट, इन्वेस्टर का ट्रस्ट बिल्ट होता है उन कंपनी पे जो कि लिस्टेड है, और वो जाहिर है वो ये देखते हैं कि ये SSCP इनको रेगुलेट कर रहा है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट कर रहा है। तमाम डिस्क्लोजर्स, अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स, ऑडिटेड अकाउंट्स बाई एनुअली हों, क्वार्टरली हों या एनुअल हों, वो इन्वेस्टर्स के लिए वो इमीडिएटली उसको मटेरियल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिसैमिनेट किया जाता है। हायर वैल्यूएशन हो जाती है कंपनी, मतलब अपनी ऑफर करती है ऑफर्ड प्राइस इन्वेस्टर्स को 10 रुपीज की, तो जो कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ दे के इन्वेस्टर उसको हायर वैल्यू पे प्रीमियम दे के, समटाइम 5 रुपए का, समटाइम 10 रुपीज का, तो वो 10 की ऑफर्ड प्राइस वाला शेयर जो है ना वो 20 रुपीज पे वो परचेज कर रहा होता है और अपना फ्यूचर जो प्रॉफिट है उसको मेक श्योर कर रहा होता है। HR कैपिटल जो है वो जाहिर है वो अपॉर्चुनिटी, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, स्किल्ड जितने भी वर्कर्स हैं और जो एजुकेटेड और टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, दे ऑलवेज लव्ड एंड लुकिंग फॉर कंपनीज विच आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक मार्केट। तो वो भी उनके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है कि वो अच्छा प्रोफेशनल वो ह्यूमन रिसोर्सेज वो इंडक्ट कर सकते हैं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ गई तो हमने स्टूडेंट्स के लिए अपने ब्रोकर से बात की हुई है कि वो दे डेफिनेटली विल कैन ओपन अकाउंट फॉर स्टूडेंट्स फॉर द अमाउंट ऑफ एटलीस्ट 10,000 से लेकर 50,000 तक। मिनिमम 5,000 से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, लेकिन फिर आपको डिपॉजिट्स दे के उसके ऊपर वो आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
इसको स्टार्ट कैसे करना है? फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड चूज कोई पहले तो लिस्ट ये देखना है कि जिस ब्रोकर है उसकी लिस्ट पीएसएस की वेबसाइट पे भी है, पड़ी हुई है, वो लाइसेंस होल्डर पीएक्स ब्रोकर होना चाहिए, कोई और मतलब और एसएससीपी की साइट पे भी है। तो आपने पहले 2-3 ब्रोकर्स के पास जाके मिले, उनसे बात करें और उनमें अपना अपना इन्वेस्टमेंट जो आपके ज़हन में है, कितनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म करनी है, मीडियम टर्म करनी है या लॉन्ग टर्म करनी है। ये जब आप 2 या 3 ब्रोकर से बात करेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव बड़े क्लियर हो जाएंगे। फिर अपनी पोर्टफोलियो स्टेटमेंट वो आप ब्रोकर के साथ डिस्कस करें। फिर आप एक किसी इन्वेस्टमेंट फर्म को सिलेक्ट करके उसमें अपना सब अकाउंट ओपन करें और अपने इनिशियल डिपॉजिट्स दें और उसमें इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन रखें और कीप करें अपने साथ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जब इन्वेस्टमेंट है तो उसकी जो फाइल है आपके पास एज एविडेंस वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। और रेगुलर फॉलोअप करें और द ब्रोकर्स के साथ। और इन्वेस्टमेंट है, मेरी एडवाइस यही होगी कि आप उसको फंडामेंटल खुद सीखें और एक्टिव इन्वेस्टमेंट के तौर पे इक्विटी मार्केट में काम करें, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द एफिशिएंट वे टू मेक अ लॉट ऑफ रेज अ लॉट ऑफ कैपिटल, जो कि आप अपना उसको इन्वेस्टमेंट से गेन कर सकते हो, कंपाउंडिंग से कर सकते हो, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट एक प्रॉफिट गेन करके आगे उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो। और आगे जो आने वाली 10-15 साल या 20 साल के बाद जब आप जिस पॉइंट ऑफ एज के जिस उस लेवल पे हो गए, तो ये इन्वेस्टमेंट बड़ी हैंडसम और हेल्दी आपके पास एक इकट्ठी हो जाएगी, जो कि आपकी आगे फिर आने वाली बड़ी जो आपके ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं या जो गोल्स हैं, जरूरतें हैं, वो आपकी वो इस तरह भी पूरी हो सकती हैं। अब ये दिस इज द लास्ट स्लाइड, इसके बाद हम क्यूए सेशन लेंगे कि व्हाई मोस्ट पीपल लूज देयर मनी इन स्टॉक मार्केट। डेफिनेटली नॉट डूइंग इनफ रिसर्च, वन ऑफ द टॉप लाइन रीजन ये है कि नॉलेज ना होना, मैकेनिज्म का पता ना होना। मार्केट जब टॉप पे होती है तो उस वक्त लोग मार्केट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, हालांकि वो एग्जिट टाइम होता है, वो एंट्री टाइम नहीं होता है। जब मार्केट सबसे लोएस्ट लेवल पे गिरी होती है, जैसे कोविड-19 ये अप्रैल में, मार्च एंड और अप्रैल के स्टार्ट में मार्केट 28,000 27,000 पे गिर गई थी केएसए 100 इंडेक्स। दैट वाज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। और जिसने उस वक्त इन्वेस्ट किया वो 6 माह बाद, अब सिनेरियो बिल्कुल ही डिफरेंट है और वो उसकी मल्टीप्लाइड इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने की है वो उनकी हो चुकी हुई है। ट्राई टू मेक मनी, सेकंड रीजन, क्विकली हम चाहते हैं रातों रात अमीर हो जाएं। नॉन डाइवर्सिफिकेशन शेयर्स, कि हम एक ही सिक्योरिटी में एक ही शेयर में सारी इन्वेस्टमेंट ना करें, उसको डाइवर्सिफाई करें विद द गाइडेंस ऑफ सिक्योरिटी ब्रोकर, या खुद स्टडी कर लें, क्योंकि 530 लिस्टेड कंपनीज एंड 35 सेक्टर्स हैं। उसको डाइवर्सिफाई करके रखें ताकि रिस्क कम हो जाए। और अगर आप और इसमें जो अदर एसेट क्लासेस हैं लेस रिस्की हैं, उस पर भी कर सकते हैं, लेकिन बीइंग एन यूथ और जो है वो आपको मैं यही एडवाइस करूंगा कि जितना आप रिस्क स्टार्ट ऑफ द इस अर्ली एज में ले लेंगे, जाहिर है उसका हाई रिस्क और हाई गेन वो बात है। फिर ये कि होल्डिंग होल्डिंग इनटू लॉसेस व्हाइल बुकिंग प्रॉफिट अर्ली, कि हम जो है ना वो लॉस को बुक करते रहते हैं और प्रॉफिट जो है ना वो मतलब अर्ली प्रॉफिट के चक्कर में, और मतलब उसको जब शेयर्स को होल्ड करना है तो हम बेच देते हैं, जब उसको बेचना होता है तो होल्ड किए रखते हैं। लैक ऑफ पेशेंस, ऑब्वियसली वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। जब मार्केट को हम वॉच कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट हुई होती है, तो अगर डेली प्राइस उसको ऊपर नीचे हो रही है तो साथ साथ आपके जो है ना वो डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो रही होती है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा होता है कि नहीं, अगर ये कम हो रही है तो वो आप उसको वो मतलब उस पर एक लैक ऑफ पेशेंस है, ये दिस इज अनदर रीजन। फिर सिक्स्थ रीजन है कि ब्लाइंडली फॉलोइंग क्राउड। कभी भी क्राउड को विदाउट एनी रीजन अगर एक ये देख लें किसी तरफ, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई शेयर्स वैल्यू को जो है वो कर रहा होता है, ड्राइव कर रहा होता है मोस्टली अलोंग विद अदर टेक्निकल एंड फंडामेंटल फैक्टर्स। लेकिन आप जरा उसको सोचें जरूर कि अगर ये क्राउड इधर जा रहा है तो एक ही तरफ, तो वो किस रीजन से जा रहा है, कोई रीजन होनी चाहिए उसके पीछे। ये मेरा ईमेल एड्रेस नोट कर लें प्लीज।
उसमें ये हो जाएगा कि अगर आज के इस सेशन में QA कुछ क्वेश्चंस रह भी गए तो आप मुझे इस पे sarmat.hussain@psx.com.pk पे आप इस पे ईमेल भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वी वुड रिप्लाई. Thank you, sir. Thank you very much. Now, dear participants, if you have any question, so अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताइए, मैं सर को फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो सर उसका आपको आंसर दे देंगे. कुछ एनी क्वेश्चन अबाउट वर्किंग ऑफ स्टॉक? हाँ बिल्कुल, जी जी प्लीज़. Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम. Sir, I have a question regarding you have mentioned के जो income है वो I think आपने एक फार्मूला इधर शो करवाया था कि सेविंग्स का, लेकिन सर उधर टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं सर लाई करेगा कि अगर हम सेविंग की बजाय इन्वेस्ट करेंगे. नहीं देखिए, तो पहले तो सेविंग करेंगे ना, पहले सेविंग करेंगे. अगर it depends upon your obviously at the in a role of students, जाहिर है हमारी वो लिमिटेड पॉकेट मनी होती है, लेकिन जब आप जॉब स्टार्ट करते हो या बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वो जो इनकम प्योर आपके पास एट द एंड ऑफ मंथ या एंड ऑफ डे आती है, उसमें से आपका जो एक जनरल रूल ऑफ थंब है वो ये है कि एटलीस्ट 20% सेव करो, और उसको फिर इन्वेस्टमेंट उसके बाद उसकी फर्दर लेयर आ जाती है कि उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है. ऑब्वियसली आप इन्फ्लेशन देखेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट जो रेट ऑफ रिटर्न है डिफरेंट वो देखोगे, लेकिन एक अमाउंट, जैसे कि मैंने IPO की बात की थी प्राइमरी मार्केट में, कि उसमें अगर आप 500 शेयर्स भी परचेज कर लेते हो और 30 रुपीज का शेयर है तो 15,000 की इन्वेस्टमेंट बनी, और वो अगले 5 साल में पता नहीं कितने, वो आपको कितनी बार वो डिविडेंड देगा, आपको बोनस शेयर देगा, और वो कितनी उसकी प्राइस एप्रिसिएशन हो जाएगी उस वक्त तक. तो इस इज द वन ऑफ द एग्जांपल. एनी अदर क्वेश्चन? ऑल्दो ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल मतलब सेशन था जिसमें स्लाइड्स वगैरह, लेकिन जो QA सेशन में अगर हेलो आप जी जी पूछें पूछें. सर मैंने ये पूछना था कि एक तो रिगार्डिंग जो हमारा अकाउंट वगैरह मैंने सुना था कि 25,000 से कोई ओपन होते हैं, हम्म. और सर दूसरा ये बता दीजिए मतलब कि क्या एज इधर एक मतलब कि स्टूडेंट आ सकता है, ये कैसा है, ये एक देखें प्लेटफॉर्म उस कैसा है? जी जी प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली हमने इसको इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इसको हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए हमने स्पेशली ब्रोकर से बात की हुई है. जो मिनिमम अमाउंट है जिससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं वो 5,000 रुपीज है, और 5,000 वो इसलिए लेते हैं कि वो अगर आप एक ट्रांजैक्शन करके ही अपना अकाउंट क्लोज कर देते हो तो 3 साल तक ब्रोकर ने आपका जो अकाउंट है उसके रिकॉर्ड है उसको मेंटेन रखना है फॉर डिफरेंट ऑडिट पर्पसेस. तो 5,000 से अकाउंट ओपन होता है, उसके ऊपर फिर 10,000 या 15,000 की आप इन्वेस्टमेंट जो आपने करनी है, वो जाहिर है वो बेसिक लेवल पे स्टार्ट करेंगे तो वो 2-3 रुपए का, 5 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, डिफरेंट जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके डिफरेंट रेट्स हैं शेयर्स के. थैंक यू सर. वेलकम. ये अस्सलाम सर, मैं वालेकुम सलाम. सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलें. सर मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा भी एक दोस्त है, वो भी ब्रोकर पे है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगा हुआ है. सर मेरा सवाल ये था, मैंने पूछना, जो मिनिमम आपने अमाउंट बताया था वो 5,000 बताया था आपने. सर मिनिमम उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मिनिमम, ये 3,000 का? 3,000 का नहीं, हम इट्स मीन 5,000 आप कह रहे हैं जो अकाउंट ओपन हो सकता है. नहीं, 5,000 का अकाउंट ओपन होगा जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं. ठीक है. अकाउंट ओपनिंग चार्जेस हैं, उसके बाद आप अपना इनिशियल डिपॉजिट आप 10,000 दें, 20,000 दें, वो एडिशनल है.
ओके सर, बस ये सवाल था मेरा। That's ओके it. ओके। uh, uh, our resource person, Sir Gulzar, want you to guide students in some aspect. So please listen to his question, please. Assalamualaikum sir. वालेकुम सलाम। Sir, I have a little actually request इसमें इस तरह से है कि स्टूडेंट्स को कुछ थोड़ा सा जो स्टॉक एक्सचेंज का डाटा पोर्टल है या इसका कोई जिस तरह से मैकेनिज्म है इसको भी ज़रा काइंडली गाइड कीजिएगा, सो दैट कि इन लोगों को आइडिया हो कि जी स्टॉक एक्सचेंज को हम इनिशियली थ्रू द हेल्प ऑफ वेबसाइट और जो उनका एडिशनल डाटा रिसोर्सेज है उसको वो किस तरह कैसे से कर सकते हैं? एक्सप्लोर ठीक कर ठीक सकते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बता देता हूँ। मैं डाटा पोर्टल ओपन करके ना मैं शेयर कर लेता हूँ। 1 मिनट मुझे जरा टाइम दें। पीएसएस के डाटा पोर्टल पे लास्ट 10 ईयर का हिस्टोरिकल डाटा पड़ा हुआ है, तमाम लिस्टेड कंपनी जो इस वक्त एक्टिव मोड में हैं। और ये एक मिनट मैं शेयर कर लूँ स्क्रीन इसकी। ये देखें, ये इसकी जो इसका लिंक है dps.psx.com.pk, ये पीएसएस का डाटा पोर्टल है। ये हमने इस साल के शुरू में हमने ये लॉन्च किया था, वेबसाइट भी इसमें अब ये सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के लिए। अभी केएससी 100 इंडेक्स देखें, आज मार्केट मतलब 44.27 ये इसमें प्लस है और 0.11% का रेज है। ये एक क्वेश्चन ये पूछा था कि ये कैसे, ये देखें ये एक दिन का ये इंडेक्स का ग्राफ आ रहा है केएससी 100 इंडेक्स का। अगर हम इसको 6 मंथ के ऊपर करें तो आप ये देखें कि यहाँ पे कोविड-19 स्टार्ट हुआ था अप्रैल, फेब, मार्च है और मई के ये जो है ना, तो मार्केट कहाँ पे, अगर किस बंदे ने इन्वेस्टमेंट यहाँ से की है, अपनी पोजीशंस ली हैं, तो आज हम 42,000 पे हैं, उस वक्त 28,000 पे चले गए थे। तो विद इन द 6 मंथ अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो गेन है वो आप कर सकते थे। इसमें एक तो ये है कि ये इंडेक्स आ रहा है, फिर ये कि मार्केट परफॉर्मेंस, टॉप कंपनीज आ रही हैं, टॉप एडवांसेस, टॉप डिक्लाइनर, मतलब जिन कंपनीज के रेट बढ़े हैं, जिनके कम हुए, वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। फिर ये कि इसमें जो है ये मार्केट्स के सबके शेयर्स, उसकी रेट आ रहा है, ओपन, क्लोज, लो, हाई। अगर किसी एक कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सपोज हम पीएसओ चूज करते हैं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, कंपनी अल्फाबेटिक यहाँ पड़ी हुई है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का देखें, ये रेट 203 रुपए 83 पैसे इस वक्त चल रहा है। और इसमें इसकी जो है कंपनी प्रोफाइल आ जाएगा, यहाँ पे कंपनी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है। फिर ये कि नीचे इक्विटी प्रोफाइल है, फिर फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपने देखने हैं। उसमें ये ट्रांसमिशन क्वार्टरली रिपोर्ट है जो वो की है, बोर्ड मीटिंग्स कौन सी हुई हैं, उसमें क्या डिसीजन हुआ, अदर्स क्या मतलब डायरेक्टर अपॉइंट किया या ऑडिटर अपॉइंट किया, वो इंफॉर्मेशन हैं। ये आपको कंपनी के बारे में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। फिर फाइनेंशियल्स पड़े हुए हैं, अर्निंग पर शेयर है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये सारा चीजें आ रहे हैं, 20 का, 19 का, 2018, 2017 का। फिर ये कि डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज पड़ी हुई हैं, जिसको आप अंडरस्टैंड कर अगर करें, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन है 17, 18, 19 की। तो ये आपको कंपनी की एक पिक्चर, एक विजुअलाइजेशन दिखाती है कि इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें या शॉर्ट टर्म करें तो आपको कितना बेनिफिट होगा। और दूसरी बात है कि पे आउट्स, कि कितने पे आउट्स किए हैं, बोनस शेयर दिए हैं, डिविडेंड दिया है, वो किस किस डेट को दिया है, वो इंफॉर्मेशन आएगी। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो हैं, ये अब क्वार्टरली, एनुअल और ये सारी पड़ी हुई हैं। तो ये काफी हैंडसम इंफॉर्मेशन है जो कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसमें उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर वो खुद करनी है तो ये काफी मतलब है इम्पोर्टेंट, ये है। और इसमें आप रिपोर्ट कर सकते हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट डाउनलोड कर लो, एनालिसिस रिपोर्ट बना लो, ये काफी इसमें चीजें हैं। मार्केट कौन सी है, मार्केट इंडेक्सेस, सेक्टर समरी, स्टॉक स्क्रीनर, हिस्टोरिकल डाटा, एलिजिबल स्क्रिप्ट्स, ग्राफिक रिव्यू, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। और कंपनीज की इंफॉर्मेशन, लिस्टिंग स्टेटस आ जाएगा, सर्किट ब्रेकर किस कंपनी का कितने बनते हैं,
किस हायर साइड और लोअर साइड, मार्जिन एलिजिबल सिक्योरिटीज, ये आगे जैसे जैसे आप फिर उसमें पढ़ेंगे। ये देखें प्रोफाइल है इसका, इक्विटी है, अनाउंसमेंट्स अगर आप इधर से इसको सर्च करें, फाइनेंशियल्स हैं कंपनी के देखना चाहते हैं वो मिल जाएंगे, फाइनेंशियल रेशोज हैं आपको वो डिसीजन मेकिंग के लिए जाहिर है वो फंडामेंटली वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पे आउट्स कितने की हैं कि कितना अट्रैक्टिव स्टॉक है ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर रिपोर्ट्स क्वार्टरली, एनुअली, बाई एनुअली, ये सारी ये इधर पड़ी हुई हैं। तो ये डाटा पोर्टल जो है ये इट वुड हेल्प यू अ लॉट। इसी तरह अगर हम मतलब PSX वेबसाइट अगर आप देखें तो उसमें उसमें हमारा जो जो इस वक्त इन्वेस्टर के लिए ये हमारा पोर्शन पड़ा हुआ है एक जो है इधर उसमें ये रिसोर्सेज हैं, ये मिशन, विजन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन है, फिर ये कि मार्केट समरी है, ये इधर से अगर आपने ये जो मैं इधर राइट साइड पे ये खोला, ये फाइंड अ ब्रोकरेज फर्म, आपको मैंने बताया था ना कि ये ब्रोकर कैसे चूज करना है, तो ये अल्फाबेटिकली ब्रोकर सारे आ रहे हैं, उनके एड्रेसेस आ रहे हैं। आपने किसी अगर लाहौर में है या उससे बाहर है तो हर जगह पे आपको ब्रोकर्स का एड्रेस और उसकी ब्रांच ऑफिस मिलेगा। जैसे ये ABM सिक्योरिटी, ये इसका कोड आ गया है, रूम नंबर, ये LST लाहौर का ब्रोकर है, ये इसका फोन नंबर है, फैक्स है, ईमेल है और उनकी वेबसाइट एड्रेस है। तो अल्फाबेटिकली 220 ब्रोकर्स की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। यहाँ पे वो ब्रोकर्स नजर आ रहे हैं, लिस्ट नजर आ रही है आपको जो कि SSCP का लाइसेंस एक्टिव चल रहा है, और इसके अलावा किसी और अगर वो उसके ऊपर थ्रू इन्वेस्ट नहीं करना ब्रोकर के जो इस लिस्ट में इंक्लूडेड ना हो। इसमें और इंफॉर्मेशन अगर आप ये डेली देखें, ये इंडेक्स मार्केट हाइलाइट्स हैं कि कितना ऊपर है कितना नीचे चल रहा है, और ये फिर अनाउंसमेंट्स हैं जो कि फाइनेंशियल कंपनी अनाउंसमेंट्स कितनी है, PSX की कोई रेगुलेटरी या ऑपरेशनल अनाउंसमेंट्स आ रही हैं वो कौन सी हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स किसी कंपनी ने अनाउंस किए हैं तो किस कंपनी ने क्या किया वो रिजल्ट, वो आपको यहाँ भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और ज्यादा डिटेल में अगर देखनी है तो फिर आप यहाँ से PSX डाटा पोर्टल को क्लिक करके वहां पे आप उसको सर्च कर सकते So there is another question by another student. हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम अवैसगर है। सर क्वेश्चन ये है कि लास्ट 6 मंथ पहले जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो काफ़ी डिक्लाइन आया मार्केट में, अब 42,000 पे आ गया आफ्टर 6 मंथ। तो क्वेश्चन ये है कि अब दोबारा चांसेस हैं कि दोबारा कोविड की एक वेव आ रही है और दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन या जो भी अगर लॉकडाउन की कोई भी स्ट्रेटजीज बनाते हैं तो वो दोबारा मार्केट डिक्लाइन करेगी या कांस्टेंट रहेगी, कोई स्ट्रेटजीज कोई पॉलिसीज बनाई गई हैं इसके लिए? देखें जहां भी अगर कोई अनसर्टेनिटी आती है ना, जैसे ये सेकंड वेव की आपने बात की है, पूरी दुनिया की मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट और उसमें नेगेटिव गई थी। PSX भी 1000 पॉइंट एक दिन गिरी है, फिर 800 पॉइंट एक दिन नीचे गई है, लेकिन फिर वो जैसे ही वैक्सीनेशन अनाउंस हुई है जो 90% से ज्यादा रिजल्ट दे रही है, उस पर फिर उसने मार्केट ने रिकवर किया अपने आप को। अनसर्टनिटी कोई भी होएगी, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, वी आर इंटरकनेक्टेड ग्लोबली, फाइनेंशियल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट सारी इंटरलिंक है आपस में, ट्रेड भी सारी इंटरलिंक है, सारे चैनल्स जो है, ट्रेड बंद हो जाएगी उसका भी, पॉलिटिकल क्लाइमेट को कुछ हो, बॉर्डर्स के ऊपर कुछ हो, तो वो स्टॉक मार्केट इज वेरी सेंसिटिव, उसने उसको एडवांस में ऑब्जॉर्व करना है। जाहिर है इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, आपकी भी अगर इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो अगर आपको कोई चीज रिस्की लगेगी या कोई अनसर्टेनिटी होएगी तो आप उसी वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट निकालोगे और सेलिंग प्रेशर बिल्ड होगा। वही होप के आगे ये मतलब अभी वैक्सीनेशन जैसे अनाउंस हुई है, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गवर्नमेंट अभी आज डिसीजन उन्होंने किया है, लेकिन वो इज वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी, क्योंकि वो स्प्रेड जैसे आपने शायद FSC में अपने जिन लोगों ने किया उन्होंने पढ़ा होगा, फिजन चेन रिएक्शन होता है, तो चेन रिएक्शन को रोकने के लिए ये स्मार्ट लॉकडाउन इंपॉर्टेंट है कि बीच में से उसको ब्रेक कर दिया जाए सीक्वेंस को, उससे ये इफेक्टिव होगा। और जो ये जो वैक्सीनेशन अनाउंस हुई है, इट्स वेरी ये माइलस्टोन था जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है अब। मेरा ख्याल है कि लेकिन अपॉर्चुनिटीज कभी भी मिल सकती हैं, मार्केट अगर नीचे जाती है तो वो टाइम बाइंग का होगा। जी जी, इरफान आप क्वेश्चन कर सकते हो, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया जी, इरफानुल्लाह।
जी इरफान जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, ये जो CDCA अकाउंट है, इसमें अगर हम शेयर रखते हैं तो इसके कोई कस्टडी चार्जेस भी होते हैं? देखिए वो इन्वेस्टर अकाउंट के तो मैंने बताया थे कि 500 या 600 रुपीज हैं पर एनम, एनुअली चार्जेस हैं उसके। जी जी। हाँ, इससे ज्यादा और नहीं है उसमें। और जो सब अकाउंट है वो उसकी वो फीस है मिनिमम, वो जब आप ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करने जाएंगे ना, तो वो सारे जितने भी पेमेंट स्केड्यूल्स और लेवीज और जो चार्जेस हैं, इंक्लूडिंग जो उनका कमीशन है, वो भी आपको वो क्लियरली आपको वो पूरा आपको प्रेजेंट करता है और वो आपसे साइन ऑफ भी लेता है। मिनिमम चार्जेस हैं वो। दूसरा आपसे ये पूछना था कि IGI ब्रोकर, मतलब ये बेहतर ब्रोकर है आपकी लिस्ट में? सॉरी, IGI जो जी पैकेजेस जी, वाले हैं, IGI मैं कह आईजीआई रहा हूँ ये, इन्वेस्टमेंट। जी जी, ये मैं कह रहा हूँ बेहतर ब्रोकर है आपकी लिस्ट में? बैकर, देखिए ब्रोकर अगर लिस्ट में इनका नाम है तो ये हमारे एक्टिव ब्रोकर हैं। लिस्ट में जी वेरीफाई जी इसको आप कर लें, तो मैंने बताया पाथ आपको राइट साइड पे। अभी मेरे पास सब तमाम ब्रोकर्स की लिस्ट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जी। आप वेबसाइट के उस पे राइट कॉर्नर पे जाके फाइंड अ ब्रोकरेज फर्म में, वहां पे आप अपना ब्रोकर का नाम डालेंगे, अल्फाबेटिकली देख लेंगे, नाम उसका ऐड कर दे, उसको आपको स्टेटस नजर आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। सर थोड़ी आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए। दो तीन पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर आस्किंग अबाउट द इस्लामिक स्टॉक इंडिसेस जो है हमारा, इस्लामिक के KMI, पॉइंट ऑफ व्यू से। जी जी बिल्कुल जी सर, सर जी जी उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? जी जी। KMI कराची मिजान इंडेक्स 30 और KMI ऑल, ये इस्लामिक इंडेक्स है जिसमें तमाम कंपनीज जो है वो शरिया एडवाइजरी और कंप्लाइंस बोर्ड के तहत वो अंडर काम कर रहा है। A to Z उनकी जो मेमोरेंडम आर्टिकल और सारी जो उनकी कंपनीज की केमिस्ट्री है वो इस्लामिक लॉज के ऊपर और शरिया एडवाइजरी बोर्ड के ऊपर वो चल रही है। तो उसमें आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो 30 कंपनी है और टोटल इस वक्त 217 कंपनी है जो शरिया कंप्लाइंट है। और बेसिकली तो देखा जाए तो ये सारा जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट का प्रॉफिट एंड लॉस बेस है, तो ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बिल्ड है सारा। लेकिन अगर आप बिल्कुल, इट डिपेंड्स अपॉन एनीबॉडीज फेथ, जाहिर है वो हम उस पे उस कंपनी को अगर हम प्रेफरेंस देते हैं जिसकी A to Z पूरा बिजनेस ही इस्लामिक तर्ज के ऊपर बिल्ड हुआ है, और वो शरिया एडवाइजरी बोर्ड और ऑडिट भी उसका उसी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, और अंडर डिफरेंट जो है जैसे मौलाना तकी उस्मानी साहब हैं, उलमा के फतवा के अंडर वो काम कर रही हैं कंपनी, तो उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सर देयर इज अ क्वेश्चन कि जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, इसका अगर हम कंपैरिजन करें अपनी सार्क कंट्रीज के साथ, फॉर इंस्टेंस जिसमें बांग्लादेश है, इंडिया है, तो ऑब्वियसली इंडिया का स्केल जो है इट्स क्वाइट बिग, और बांग्लादेश जो है ये भी बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी को में जो है ना वो कंसिडर किया जाता है। यू थिंक कि पाकिस्तान मतलब इनके लिस्ट में स्टेबल है, समवॉट नीचे है, या हम उसको कहाँ पे कंसिडरेट करेंगे सार्क कंट्रीज के मुतालिक, जो एशिया में पर्टिकुलरली जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इसमें हम इसको कहाँ पे रेट कर सकते हैं? देखें, ऑब्वियसली इंडिया 5 टाइम 6 टाइम बिगर्स है, और उसमें जो क्राइसिस जो हम फेस करते रहे हैं, पहले पावर का क्राइसिस बहुत रहा है कि इंडस्ट्री की उसके ऊपर यूटिलाइजेशन या उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एनर्जी, इसी वजह से CPEC के ऊपर जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट या जो गवर्नमेंट ने उसको फोकस किया है, प्रीवियस गवर्नमेंट ने भी और इस गवर्नमेंट ने भी, तो हमारी जो एनर्जी क्राइसिस है उसको एड्रेस किया जाए। ड्यूरिंग दीज 4 to 5 ईयर काफी हमारी कंपनीज और बिजनेस जो है ना वो शिफ्ट हुए हैं, स्पेशली टेक्सटाइल से रिलेटेड बांग्लादेश में, और काफी मतलब कंट्रीज ने उसको टोटली 100% फ्री इकोनॉमिकल जोन उसको डिक्लेयर करके तो कंपनीज को अट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से कंपनीज गई हैं वहां पे। लेकिन अब CPEC के अंडर भी हमारे डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल जोन बन चुके हैं। फैसलाबाद इज वन ऑफ द एग्जांपल। लाहौर के करीब अभी एक मतलब वो फाइनल स्टेजेस में है, और अभी जो इस वक्त रिसेंटली जो पावर पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और
जो पूरे इंडस्ट्री के लिए कि जितनी यूटिलाइजेशन होगी उतना बिल कम होगा इलेक्ट्रिकल और जो गैस की यूटिलाइजेशन के ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि वो काफी अभी ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हालात, लेकिन वो इंडिया में और बांग्लादेश में और इवन श्रीलंका में भी जो अवेयरनेस लेवल है और जो डॉक्यूमेंटेशन लेवल है वो हमसे काफी बेहतर है। कि हम अभी FATF की उसमें ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए तगोदो कर रहे हैं। अभी भी तकरीबन 21 हमने क्लॉजेस को मीट किया आउट ऑफ 27। तो वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो है ना, वो क्योंकि मतलब डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी 100% नहीं है, कंपनीज के अंदर भी नहीं है, जो अंदर है जो कि प्राइवेट कंपनीज हैं या जो फैमिली ओन बिजनेसेस हैं, मल्टीपल बुक्स को मेंटेन किया जाता है। तो ये एक इशू है जिसको गवर्नमेंट और सब लोग रियलाइज कर लिया है कि अब ये इसको हमें किए बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि हम ये ग्रे लिस्ट में होने की वजह से भी काफी ज्यादा हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस और रिस्ट्रिक्शन है। थैंक यू वेरी मच सर। लास्ट क्वेश्चन ये है कि इससे पहले हमारी 3 एक्सचेंजेस ऑपरेट होती थी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। तो इसको हमने जो है ना कंबाइन इंटीग्रेट करने की क्या बेसिक रीजन थी कि जिसको हमने मतलब एक में ही उसको हमने कन्वर्ट कर दिया? देखिए, इसकी मेन कोर रीजन तो ये थी कि जो तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस का जो वॉल्यूम था, जो एक्टिविटी थी, वो 95% कराची में होती थी। वन ऑफ द कोर रीजन। 5% जो वॉल्यूम था, जो ट्रेडिंग एक्टिविटी थी, वो लाहौर और इस्लामाबाद शेयर करते थे इंडिपेंडेंटली। लिक्विडिटी इशू था, बायर को सेलर और सेलर को बायर नहीं मिलता था, ठीक है। और ये चीज जब ये SSCP ने इनिशिएटिव लिया और वो तीनों एक्सचेंजेस का केस इवन कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी गया, तो बड़ी वो ग्राउंड रियलिटीज और स्ट्रॉन्ग रैशनल के ऊपर फिर उन्होंने कंपटीशन कमीशन ने इसको ओके किया था और फिर गवर्नमेंट ने और SSCP ने इसको किया, क्योंकि यहाँ पे भी जो मोस्टली जो ब्रोकरेज हाउस थे इस्लामाबाद और लाहौर, वो कराची में ही काम करते थे, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी बेहतर थी और इसीलिए 95% वॉल्यूम कराची का था। दिस इज द वन ऑफ द कोर रीजन। Thank you, sir. Thank you very much, sir, for conducting such a valuable session with our students of studying in the last year. And I hope that this session will have imparted a great knowledge to their in addition to the studies, that how does the capital market work and how does Pakistan Stock Exchange Limited works. So, dear sir, thank you very much. We will contact you once again in our next semester for the students studying the last semester in the spring of 2021. Thank you, sir. Thank you very much. Sure. Allah Hafiz. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz.